Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 12th chemistry chapter number 8. The name of this chapter is F and D block elements, D and F block elements, and the today topic is actinides. All isotopes are the radioactive. जितने भी isotopes होते हैं they all are the radioactive with only 232 TH, 235 U यानी यूरेनियम, 238 यूरेनियम and the 244 polyplatinum have a long half lives. Only TH and U occur naturally. Both are more evident in the earth crust than tin. जो TH और U जो एलिमेंट्स है हमारे पास में ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाए जाते हैं. द अदर मस्ट बी मेड बाय द न्यूक्लियर प्रोसेस और ये न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर काम में लिए जाते हैं. The dominant oxidation state of the actinides is the +3. Actinides also exhibited on the oxidation state of +4. Some actinides such as the uranium, neptunium and the plutonium also exhibit an oxidation state of +6. The actinides show the actinide contraction. जो actinides होते हैं वो actinide contraction show करते हैं like the lanthanides, and due to the poor shielding effect the nuclear charges by the 5f electron. poor shielding effect की वजह से जो nuclear charge होता है वो 5f electron का होता है. all the actinides are the radioactive. जितने भी actinides होते हैं they all are the radioactive and the actinides are the radioactive in nature. और जो actinides होते हैं ये radioactive होते हैं nature में. Actinides contraction, the size of the atoms M3 plus ion decrease regularly along the actinide series. The steady decrease in ionic and the atomic radii with the increase in the atomic number is called the actinide contraction. The contraction is greater from the element to element in the series due to the poor shielding effect by the f electron, 5f electron. Now the electronic configuration are here: actinium, thorium, protoactinium, and the uranium, neptunium, plutonium, and americium, and the curium and the प्रैक्लियम. इस तरीके से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं. एंड द इलेक्ट्रॉन नंबर इज़ 89 to 103 are here. Magnetic properties, the magnetic behavior, magnetic properties are more complex than those of the lanthanides. ये वैसे पैरामैग्नेटिक होते हैं लेकिन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इनकी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है. Melting point, the boiling point. Melting point, the boiling point do not follow a regular graduations of the MP and the BP with increase in atomic number. Ionization enthalpy, low ionization enthalpy, so electropositivity is high. जो ionization enthalpy होती है वो काफ़ी कम होती है, इसीलिए electropositivity जो है वो high होती है. Color generally colored फॉर्म में मिलते हैं. कलर डिपेंड्स ऑफ द नंबर ऑफ द 5f इलेक्ट्रॉन, और जो कलर है वो 5f इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है. द आयन कंटेनिंग 5f डिग्री एंड 5f7 आर द कलरलेस. जो आयन्स होते हैं वो 5f0 एंड 5f7 जो है वो कलरलेस होते हैं. इनमें U3 प्लस आयन जो है वो रेड कलर में होता है एंड NP जो है वो ब्लूइश कलर के अंदर पाया जाता है. नाउ डेफिनेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो एक बार हम लोग रिपीटेशन भी ले लेते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलोंगिंग टू द ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि ग्रुप 3 से 12 के अंदर आते हैं. और उसके बाद के जो होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है. द डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई इन बिटवीन द एस एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट. जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच के अंदर पाए जाते हैं. उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी हम जानते हैं. ये हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इस गैडियम से लेकर जिंक तक का. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से हम इनको जानते हैं. और जनरली प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं पहले हाई होते हैं और फिर आगे जाके लो हो जाते हैं. एटॉमिक और आयनिक साइज जो होता है उसके बारे में लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के रूप में हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं. नाउ आगे बताया गया है आपका कि द फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद द इंटरवेशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल. द फिलिंग ऑफ द 4f बिफोर द 5d ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन अ रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस कॉल्ड द लेंथेनेंट कॉन्ट्रैक्शन. तो लेंथेनेंट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो इनका साइज़ होता है वो भी डिक्रीज होता है. और यही बात हमने जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी स्टडी किया है कि सेम एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन के रूप में इस तरह कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ दी गई है, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने एक्सप्लेन किया था. कलर्ड आयन के फॉर्म के अंदर बताया था कि मोस्टली जो होते हैं वो कलर्ड आयन पाए जाते हैं. ना देखिए यहाँ पे टाइटेनियम जो है उसका कलर सोडियम, टाइटेनियम वाइट कलर में है, सोडियम येलो कलर में है, पोटेशियम फेरिकोनाइट
जो है वो लाइट ग्रीन कलर में है। निकल नाइट्रेट एंड हेक्साहाइड्रेट जो है वो एप्पल ग्रीन कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। कॉपर जो है वो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई देता है। कोबाल्ट जो है वो आपको ऑरेंज कलर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। मैग्नीज के अंदर कलर है वो दिखाई दे रहे हैं, और स्कैंडियम जो है उसको भी वाइट कलर के अंदर दिखाई दिया है। यहाँ पर देखिए जो कलर ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात करते हैं किस तरह के कलर वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो जब वो 430 से 400 से 430 तक का अदर कलर जो एब्जॉर्ब करते हैं तो जो सॉल्ट है वायलेट कलर का दिखाई देता है। 430 से 480 के बीच में ब्लूइश कलर दिखाई देता है। 480 से 560 में ग्रीन कलर, 560 से 590 के बीच में येलो कलर, 590 से 630 के बीच में ऑरेंज कलर, 630 से 750 के बीच में रेड कलर की रेडिएशंस की वजह से वो सॉल्ट हमें उस कलर का दिखाई देता है। नाउ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके की जो प्रॉपर्टी है वो लैंथेनाइट्स में पाई जाती है। तो एक्टिनाइट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो लैंथेनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर देखिए आप सीरियम और सीरियम से अपर के अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनका हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही कॉमन है इसके अंदर। नाउ द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। इफेक्ट ऑफ द लैंथेनाइट की वजह से क्या होता है, डिक्रीज इन बेसिसिटी होता है। फेजान्स प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं हम इसको, कि लार्जर द साइज ऑफ द कैटायन ग्रेटर इन द टेंडेंसी टू सच अ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ द डिसोसिएट्स एंड द स्ट्रॉन्ग विल बी अ बेस, कोवलेंट नेचर जो है वो पाया जाता है। इफेक्ट ऑफ द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, आयनिक रेडियस ऑफ द पोस्ट लैंथेनाइट्स जो है वो पाए जाते हैं। द एलिमेंट विच फॉलो द लैंथेनाइट्स इन द थर्ड जनरेशन सीरीज आर नोन एज द पोस्ट लैंथेनाइट्स। तो जो थर्ड सीरीज है उसे हम पोस्ट लैंथेनाइट्स के नाम से जानते हैं। द आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट विच फॉलो द लैंथेनियम are similar to that of the elements of the previous period. This is a normal increase in a scandium to yttrium. इफेक्ट ऑफ द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो केमिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी ट्विन्स टाइप की मिलती है हमें। नाउ एक्टिनाइट्स के अंदर बता रहा है कि 7th पीरियड जो होता है वो एक्टिनाइट्स का होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि मैनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सिमिलर होती है। सेकेंड इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से इनको जानते हैं। आउटर मोस्ट एंड दो पेनुलेमेट शेल जो है वो रिमेन रहती है। जनरली जो है ये 5f 1 to 10 एंड 6d 0 to 1 एंड 7s2 का जो फॉर्मेशन है ये 1 to 14 तक का जो फॉर्मेशन है वो बताया गया है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनियम का देखिए 89 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 देन 4s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p 6d1 7s2 फॉर्मेशन में पाई जाती है। यहाँ थ्योरम जो है उसका जो सिंबल है वो TH होता है। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एक्टिनाइट्स +3 जो है वो कॉमन है, और कुछ एलिमेंट्स जो है वो हमें 7 तक का भी ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिटवीन द डिफरेंस इन बिटवीन द लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स, so binding energy of 4f electrons are higher in a lanthanides and binding energy of the 5f electrons are lower in actinides. Maximum oxidation state exhibited by the lanthanides is +4 and in actinides +4 +5 +6. Uranium has +6 oxidation state. 4f इलेक्ट्रॉन हैव अ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। जो 4f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके अंदर ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट पाया जाता है। जो एक्टिनाइट्स होते हैं इनमें 5f इलेक्ट्रॉन हैव अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है प्रेजेंस रहता है। लैंथेनाइट इज द मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर द कलरलेस। लैंथेनाइट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द आयंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। एक्टिनाइट्स के अंदर मोस्ट ऑफ देयर आयंस इज द कलर्ड। इस U4+ आयन ग्रीन एंड द U2 माइनस आयन येलो कलर के अंदर पाया जाता है। दे आर अ पैरामैग्नेटिक। लैंथेनाइट जो होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैन बी ईजिली एक्सप्लेन। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक बट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आर वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जो लैंथेनाइट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं बट द एक्टिनाइट्स हैव मच ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन जो एक्टिनाइट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की जो टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है। लैंथेनाइट्स एक्सेप्ट द प्रोमीथियम दे हैव अ नॉन रेडियो एक्टिव। जो प्रोमीथियम है
वो प्रोथियम जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, बट इन द एक्टिनाइड्स ऑल आर द रेडियो एक्टिव। जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड्स में वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। देयर कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनके कंपाउंड्स लेस बेसिक होते हैं, और एक्टिनाइड्स में देयर कंपाउंड्स आर मोर बेसिक, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं मोर बेसिक होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सीकेटायंस। जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो ऑक्सीकेटायंस नहीं फॉर्म करते हैं, बट इन द एक्टिनाइड्स ऑक्सीकेटायंस आर फॉर्म्ड UO2 minus and UO minus and PO2 minus and PuO2 minus type of oxycations are formed in the actinide series. So a chapter is completed. Question answer and inner question answer I will be sent in the group, so you will be note down there. Thank you very much, students.